Hello friends, many a times students who pursue chartered accountancy, company secretaryship are eager to have basic knowledge about capital markets. On various occasions, they have asked me, sir, please tell the basics of stock market. We want to know something about it. Then I thought these things are also relevant for your syllabus as well. Be it MBA, be it chartered accountancy, be it company secretaryship. In CA inter as well as in finals, not only in CA but in inter level as well as final level, you have to learn a lot of things about capital market. So I thought I should start a series of small videos in which I should tell you about basics of capital market. I will try to speak most of the things in English because it is of utility to larger number of people. First thing I would like to tell you, to learn about capital markets, there are various platforms available. You can watch television. In the television, two channels are very appropriate to be watched. For English, you must see CNBC TV 18, and for Hindi version, you may have two options: CNBC Awaz, the Business. Now, to tell you about capital market, I can't teach you through TV. Therefore, I did not choose that platform. Second platform is reading Economic Times paper. But we people are so busy that we hardly have time. How can we regularly read newspaper? It is very impractical for many people, and that does not give a huge knowledge as well, because most of the news are very current news. They can't tell you concepts. Third option is through books, but again, many of us do not have the habit of reading. And the fourth option would have been going through a proper website or through some app which can tell us. So I chose an app of Money Control, which is very popular among capital market investors. This app has been developed keeping in mind the stock market traders as well as investors. But I will teach you a lot of things through this app. So let me begin, and I will caption this video as how to read Money Control app. This video which I am shooting for you is targeted towards those students or people who have zero knowledge about capital market, zero knowledge. So I will try to explain things from scratch, from zero. Okay, my dear friends. बट थोड़ा बहुत मैं अज्यूम करूँगा कि आप समझेंगे, पहले कुछ चीज़ें जानते होंगे, उसके हिसाब से बताऊँगा लिटिल बिट। तो जब आप ये होम पेज में ऐप चालू करते हैं, ये देखिए ये ऐप आपने डाउनलोड किया मनी कंट्रोल का, ये चालू करेंगे तो फर्स्ट पेज आपका ये खुले, फर्स्ट पेज। अब ये ऐप शुरू एक्चुअली कहाँ से होता है? सबसे पहले आंखों को स्ट्राइक करती है ये एक टिकर, ये जो हिंदी में बोलते हैं पट्टी, इंग्लिश में बोलते हैं टिकर, TICER, टिकर। तो ये टिकर में इंडिया की जो बेस्ट 30 कंपनीज है उसके प्राइजेस जाते हैं। एक मिनट को रोकता हूँ, अल्फाबेटिकली जाते हैं ये। सबसे पहला है एशियन पेंट। अगर आप देख पा रहे हो अपनी मोबाइल में भी ऐप चालू करें, 1687 प्राइस है। अब मेरी नज़र जा रही है भारतीय एयरटेल के प्राइस पे 560। फिर मेरी नज़र जा रही है HDFC बैंक के प्राइस पे 1055। अब एक मिनट के लिए मैं रोक दिया, उसमें टिक किया तो HDFC बैंक का डिटेल्ड विंडो खुल गया। अब इसको कैसे पढ़ते हैं? HDFC बैंक के शेयर का इस वक्त मार्केट प्राइस 1055 है, मतलब 1055 रुपये। So if you want to purchase one share today out of your savings, you have to spend around 1000 rupees to purchase one stock of HDFC बैंक। अब आप इसके बाजू में देख रहे होंगे, मैं इसको जूम नहीं कर सकता, 26.65 ग्रीन में दिख रहा है। व्हाट इज दैट? का मतलब है जैसे आज बेटा मैं 26 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो आज सैटरडे भी है, तो आज तो स्टॉक मार्केट बंद होते हैं। तो फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1055.6 है, और बाजू में 26 रुपीज़ ग्रीन में लिखा है। इसका मतलब जो थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस थी स्टॉक्स की, उससे ये 26 रुपीज़ ज़्यादा है। मतलब फ्राइडे को अकेले ये शेयर 26 रुपीज़ अप्रिशिएट हुआ है। तो द राइट figure in green or red shows you the single day appreciation or single day depreciation. Had it been written in red, then that would have meant that the stock has fallen on Friday. But since it is written in green, it will mean that the stock has risen on Friday. और उसी के ब्रैकेट में परसेंटेज टर्म्स में लिखा हुआ है 2.59%. What does that indicate? That indicates that the appreciation in percentage form is 2.59%. In the right side, it is written VOL, volume, and that indicates that how many shares have been bought or sold on the single day of Friday, on 25th June, 26th June. Today is 27th. And the another right thing is telling you 26 June, comma 4 p.m. So this price is as of 26 June, Friday, 4 p.m. अब इसके नीचे ओवरव्यू लिखा है। ओवरव्यू के नीचे ये देखिए ग्राफ बना हुआ है। ये जो ग्राफ है ना, ये एक दिन में शेयर का प्राइस पैटर्न कैसा था उसके ऊपर है। मतलब ये देखिए 1 डे सिलेक्टेड है, तो सुबह ये शेयर कहाँ चल रहा था, फिर ये कैसे बढ़ा, ये आपको ग्राफ पता चल रहा है। ये सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक का मूवमेंट। अगर आप एक दिन के प्राइस मूवमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगला ऑप्शन है 5 डेज। इससे आपको पूरे वीक का पैटर्न पता चलेगा, मतलब जो बीता हुआ हफ्ता था उसमें। तो इसको देखकर आपको कैसे दिखाई देगा, वॉलेटिलिटी देखिए भाइयों, दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये एक बार के लिए 1060 तक गया था, फिर बीच में हफ्ते में वेनसडे के आसपास ये शेयर 1000 रुपये तक चला गया था, फिर वीक के आखिरी में वापस 1055। तो दिस ग्राफ विल टेल यू हाउ द शेयर हैज मूव्ड इन पास्ट, राइट। 1055 तो अभी चल रहा है, पहले कहाँ था, अभी कहाँ है। ये जैसे अभी किसी को पता लगाना है सर ये शेयर एक साल पहले कितना था, तो ऊपर से जाके नीचे आया है कि नीचे से जाके ऊपर आया है। तो 1 ईयर चार्ट यू कैन सिलेक्ट एंड so this chart is telling you something. This chart is telling you that ये शेयर का जो अभी रेट है लास्ट लेटेस्ट ये 1055 है, पर बीच में इसके शेयर का रेट 1300 रुपीज़ तक टच किया। ये था बेटा फेब्रुवरी मार्च के आसपास, जब कोरोना का प्रॉब्लम नहीं आया था। फिर ये बहुत नीचे गिर के 765 तक भी आ गया था। जो बॉटम ऑफ चार्ट दिख रहा है ना, ये 765 है। ये तकरीबन अप्रैल के महीने में था, और अभी एज वी स्टैंड ऑन 26 जून हैज कम टू 105। तो दिस इज हाउ वी रीड थिंग्स। अभी और नीचे चलूंगा ना, तो सिर्फ HDFC बैंक के बारे में जान पाएंगे, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पर मैं अभी होम पेज में वापस चला जाता हूँ। तो होम पेज में ऐसे हर स्टॉक की हिस्ट्री चल रही होगी। आपके लिए एक टास्क, जैसे सपोज ये जो टिकर चल रही है, इसमें ITC पे टिक करता हूँ। ITC बेटा जिसका आप लोग नहीं, लोग सिगरेट पीते हैं जिस कंपनी की, ये होटल्स भी है। अच्छा, आप लोग के भी काम की बात, आप लोग क्लासमेट की कॉपी यूज़ करते हैं, तो वो ITC की कंपनी की रहती है। तो बताओ ये 195 क्या है, ये शेयर का प्राइस है। बाजू में देखो क्या लिखा है, 7.15 रेड में लिखा है। का मतलब फ्राइडे के दिन ये शेयर 7.15 रुपीज़ गिरा। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों गिरा। एक्चुअली कोइंसिडेंटली फ्राइडे को ही इस कंपनी के रिजल्ट्स थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो वो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए जितना स्टॉक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो डिसअपॉइंट होने के कारण क्या। फिर वॉल्यूम देखिए आप इसका, वॉल्यूम 57 लाख शेयर्स का है एक दिन में। फिर प्राइस का, फिर ओवरव्यू में इसका भी देखो, आपको एक दिन का ट्रेड दिखाई देगा। 1 ईयर का टिक करोगे तो एक साल में कितना वॉलेटाइल रहा है वो दिखाई देगा। चलो अब और सिखाता हूँ बेटा थोड़ा आगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, रोज अपने को सीखना है चीज़ें। अब ये टिकर अलग अलग कंपनीज का एक रिवीजन के लिए, कितनी कंपनीज के नाम आएंगे इसमें, सिर्फ 30 जो इंडिया की बेस्ट कंपनी। अब आप बोलोगे सर वो 30 बेस्ट कंपनीज कैसे चूज होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज वाले चूज। और जो 30 बेस्ट कंपनीज होती है ना, उसको एक इंडेक्स में डाल दिया जाता है कि
वो 30 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है ओवरऑल, वो एक इंडेक्स में दिख जाए। तो वो इंडेक्स का नाम होता है सेंसेक्स। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। तो ये देखिए सेंसेक्स यहाँ पे, इसको मैं अगर टैप करूं तो सेंसेक्स का विंडो खुल रहा है। तो सेंसेक्स का अभी वैल्यू है 35,171। ये क्या दर्शाता है? 2 मिनट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा। सेंसेक्स 1970s में बना था, 100 से। तब भी 30 कंपनीज को बेस लिया गया था, उसके प्राइस को बेस लिया गया था, और ये इंडेक्स 100 का बना था। और अगर ये इंडेक्स उस समय 100 था और आज इसकी वैल्यू 35,171 है, तो आप समझ जाइए 100 से बढ़कर 35,171 आना मतलब, अगर मैं 2 डेसिमल कम कर दूं तो 351 टाइम्स वैल्यू अप्रिसिएट हुई। जिसका सिंपल भाषा में मतलब है कि अगर उस समय जब सेंसेक्स बना था, उस समय किसी इन्वेस्टर ने उन 30 कंपनी में 100 रुपए लगाए होते, जोड़ के 100 रुपए लगाए होते, तो वो आज 35,171 बन गए होते। मतलब सेंसेक्स की कंपनीज में अप्रिसिएशन है 351 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 40 ईयर। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड्स। और इसके बाजू में 329 ग्रीन लिखा है, मतलब फ्राइडे के दिन ये इंडेक्स 329 पॉइंट्स बढ़ा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंडेक्स कब बढ़ता है और कब कम होता है? तो बेटा इस सेंसेक्स को स्टॉक मार्केट की बाकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट में तकरीबन 3,000 कंपनियां लिस्टेड है। इस सेंसेक्स को सिर्फ उन 30 कंपनी से मतलब है जो इसमें समाई हुई है। उस 30 कंपनीज में से ज़्यादातर कंपनियों के शेयर के रेट अगर ऊपर जाएंगे तो ये सेंसेक्स ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली ऊपर जाएगा, और उन 30 कंपनीज में से ज़्यादातर कंपनियों के रेट जब नीचे जाएंगे तो सेंसेक्स का भी रेट नीचे जाएगा। अच्छा सर, वो सेंसेक्स की 30 कंपनियां कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा? ये है ना बेटा आपके सामने, ये ओवरव्यू के बाजू में स्टॉक्स दिख रहा होगा, इसमें जाइए तो आपको 30 कंपनियों के नाम दिख जाएंगे। सर ये 30 कंपनियों के बारे में कुछ बताइए। बेटा जो कंपनियां अपने अपने सेक्टर की लीडर होती है उसको यहाँ पे डाला जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज वाले मीटिंग करते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े बड़े सेक्टर कौन से हैं बिजनेस के। तो आप बताइए 4-5 बड़े बड़े सेक्टर जैसे आपके मन में आएगा। समझ लीजिए सीमेंट, तो सीमेंट का सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है? अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक इसमें होगा। दूसरा सेक्टर मान लीजिए ऑटोस, तो ऑटोस की बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम बताइए। मारुति, टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये सब इसमें होंगे। हालांकि कुछ छोटी कंपनियां भी होती है ऑटो में, जैसे कि अशोक लीलैंड, जैसे कि आइशर मोटर्स, जैसे कि टीवीएस मोटर्स। पर वो कंपनियां अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनियां नहीं है, बड़ी कंपनियां नहीं है, तभी वो इस इंडेक्स का पार्ट नहीं है। ये भी शेयर्स हैं बट वो इंडेक्स के पार्ट। तीसरे सेक्टर पे आते हैं बैंक्स। बैंक्स हमारे देश में 40 है, राइट, प्राइवेट पब्लिक मिला दें, पर सेंसेक्स में सिर्फ 2-4 बैंक ही है, जैसे HDFC बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, KCA बैंक, एक्सिस बैंक। बट आपको यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, येस बैंक, ये सब नहीं मिले, राइट। और सेक्टर्स में आते हैं, और सेक्टर से IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जो सबसे बेस्ट बड़ी कंपनी TCS, इन्फोसिस, ये मिलेंगी आपको। बट जो छोटी कंपनियां होंगी जैसे कि टेक महिंद्रा, जैसे कि साइंट, जैसे कि माइंड ट्री, बेंगलोर बेस्ड कंपनी, वो सब यहाँ पे नहीं। शेयर्स हैं बट इंडेक्स का पार्ट। तो नोटिस कीजिएगा एक बार कौन सी कंपनियां हैं। आप अपना नॉलेज चेक कीजिए, इसमें से कितनी कंपनियों के बारे में आप जानते हैं। एशियन पेंट, पेंट सेक्टर का ये सबसे बड़ा कंपनी है। बर्जर पेंट भी है, शालीमार पेंट भी है, बट वो सब इंडेक्स का पार्ट नहीं। फिर एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व इज द बिगेस्ट NBFC ऑफ अवर कंट्री। भारती एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर में, आइडिया को इसमें हिस्सा नहीं बनाया, भारती को बनाया है। HCL टेक, आई एम सॉरी, HCL टेक इज देयर। HDFC, अब एक बढ़िया डाउट, HDFC भी लिखा है और HDFC बैंक भी लिखा है, वाई? HDFC and HDFC Bank are two separate companies. HDFC is housing finance company, NBFC, and HDFC Bank is a private sector. Bank and NBFC are two different things. NBFC cannot take public deposits, cannot take
time deposits. Sorry, they cannot take demand deposits. They cannot issue check, but banks can. खैर कभी किसी और बात पे करेंगे. हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, Infosys, ITC, Kotak Mahindra, Larsen and Toubro is the biggest construction company, Nestle is the biggest FMCG company. तो ऐसे 30 कंपनियां हैं. अब बेटा एक चीज़ और बताऊंगा. अल्फा, इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया इसमें. तो सेंसेक्स क्या होता है हमको ये समझना. ऐसे ही एक और इंडेक्स बनाया गया है गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा. उसको बोलते हैं निफ्टी. जैसे सेंसेक्स 1970s में बना था, तो निफ्टी 1990s में बना था, 92 93 के आसपास. वो भी 100 से शुरू हुआ था. अब एक रिवीजन. निफ्टी का रेट अभी कितना है? 10,383. तो सर ये भी 100 से शुरू हुआ था. जी हाँ. कब शुरू हुआ था? 92 93 में. तो सर तब ये 100 था, और अगर आज ये 10,383 है, तो इसका इतना अप्रिसिएशन आया जी. 103.83 टाइम्स अप्रिसिएशन आया. तो अगर कोई बंदा उस समय चुपचाप निफ्टी की कंपनीज को परचेज किया होता ना, और कुछ दिमाग नहीं लगाया होता, कोई म्यूचुअल फंड में नहीं डाला होता, और उस पर आज तक बैठा हुआ होता, तो उसके पैसे 100 गुना बढ़ चुके होते. दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स. इसमें कितनी कंपनियां हैं? इसका नाम ही देखो, इंडेक्स का है निफ्टी 50. में 50 कंपनीज. सर कौन सी कंपनीज होती है 50? वो लिस्ट में पता चल जाएगा. अदानी पोर्ट, देखो अदानी पोर्ट वहां पे नहीं था, यहाँ गौतम अदानी की कंपनी. एशियन पेंट वहां पे भी था, यहाँ पे भी है. तो सर एक डाउट हमारा, जो कंपनी सेंसेक्स में वो निफ्टी में हो सकती है? द आंसर इज यस. सम कंपनीज आर पार्ट ऑफ बोथ सेंसेक्स एंड some are part of Nifty only but not Sensex, some are part of Sensex but not Nifty. दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली बनाते हैं. समझ लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मेरिट लिस्ट बनाई 30 कंपनीज, तो उन्होंने कुछ 30 कंपनीज को डाला. और निफ्टी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, उसने मेरिट लिस्ट बनाई 50 की, तो उसने अपने 50 शेयर अलग डाले. हो सकता है कुछ कुछ कॉमन हो सकता है कुछ कुछ नहीं हो. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. इंपॉर्टेंट टू नो बट नॉट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. तो इसमें अपनी अलग 50 कंपनियां, सबके अलग अलग रेट होते हैं बेटा. जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे सब कंपनीज के प्राइजेस याद होना चालू हो जाएंगे. जैसे एक दुकानदार को अपनी दुकान के सारे आइटम के प्राइजेस याद रहते हैं, हमको याद नहीं रहते. तो इट्स अपॉन योर यूटिलिटी एक्चुअली. टू स्टार्ट विथ यू शुड ट्रैक एटलीस्ट 3 to 5 स्टॉक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो अब बेटा मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा. ऐसे सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है. इसमें सिर्फ इंडिया की जो बेस्ट बैंक्स है उसके प्राइजेस को ट्रैक किया जाता है. इसमें सिर्फ इस वक्त कुछ 13-14 कंपोनेंट्स हैं. आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ. ये ग्लोबल इंडाइसेस लिखा है. ग्लोबल इंडाइसेस का मतलब इंडिया के अलावा दूसरे देशों के स्टॉक मार्केट का. सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के इंडेक्स. तो इस पर एक बार चलते हैं. सबका एक बार बस मीनिंग बता देता हूँ. ये SGX निफ्टी क्या होता है? ये निफ्टी के इंडेक्स को सिंगापुर में जो ट्रेड करते हैं ना, उसका प्राइस है. मैं इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा. नाजदाक इज फॉर US, FTSE इज फ्रांस इंडेक्स, कैक इज इटालियन इंडेक्स, डेक्स इज जर्मन इंडेक्स, निकेई 225 इज अबाउट जापान इंडेक्स, ट्रेड्स टाइम्स इज अबाउट सिंगापुर इंडेक्स, हैंग सेंग इज द नेम ऑफ हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स. जैसे अपने इंडिया का निफ्टी है ना, वैसे हांगकांग वालों के लिए हैंगसेंग है. तो अपन यहाँ निफ्टी को ट्रैक करते हैं और हांगकांग वाले हैंगसेंग को ट्रैक करते हैं. जैसे निकेई 225 लिखा है, निकेई किसका बताया था? जापान का. तो 225 डिनोट्स कि जापान के स्टॉक एक्सचेंज ने 225 बड़ी कंपनीज के एक इंडेक्स बनाया, निकेई. नाम निकेई रखा उन्होंने. क्यों रखा? आई डोंट नो. निकेई इज जस्ट अ नेम. जापान वालों ने नाम रखा. खैर उसके बाद देखिए, ताइवान वेटेड एज द नेम सजेस्ट. जो ताइवान कंट्री है उसके स्टॉक एक्सचेंज का नाम नहीं, इंडेक्स का नाम ताइवान वेटेड. कॉस्पी, दिस इज ऑफ कोरिया. कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किंग जोन उन, वही वाला को. फिर accommodate myself. SET, SET is about SET composite is about सियूल. सियूल एक देश है कोरिया के बाजू में, वहाँ का.
CT composite is not about Seoul actually. This is a perhaps I'm not sure about this. I have never traded Thailand. Perhaps I'm not sure. जकार्ता इज फॉर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, वहाँ का इंडेक्स। और शंघाई कंपोजिट, एज यू कैन अंडरस्टैंड अवर फ्रेंडली कंट्री चाइना, वहाँ का इंडेक्स है ये। सबके अपने अपने प्राइजेज हैं। तो अब ये सब क्यों दिखाना देखना चाहिए पता है आपको? क्योंकि पूरे वर्ल्ड के कैपिटल मार्केट्स ना ग्लोबलाइज्ड है। जैसा अमेरिका मूव करता है वैसे ही यूरोपियन भी मूव होते हैं, वैसे ही एशिया भी मूव, सब कनेक्टेड होते हैं। जब अप्रिसिएशन आता है तो पूरे वर्ल्ड की इक्विटीज़ में एक साथ आता है, और जब डाउनफॉल आता है तो पूरे वर्ल्ड की इक्विटीज़ में एक साथ। तो सभी कनेक्टेड है। तभी मनी कंट्रोल वालों ने क्या किया, ट्रेडर और इन्वेस्टर को सभी मार्केट का दर्शन कराते हैं वो। ऑफ कोर्स हम लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं करते, हम लोग जापान के स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करते, बट जापान अप्रिशिएट होता है तो इंडिया के भी अप्रिशिएट होने की बहुत चांस है। इसीलिए लोग पूरे ग्लोबल के इसको देखते हैं। अब ये समुंदर है बेटा, बहुत बड़ी वेबसाइट है। अभी मैं आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बताया हूँ। ये स्टॉक एक्शन है, मतलब कल फ्राइडे के दिन टॉप गेनर्स कौन कौन थे, कौन सी कंपनीज के शेयर अप्रिशिएट हुए थे कल। तो इन्फोसिस, बीपीसीएल, टीसीएस और आईओसी के शेयर अप्रिशिएट। क्यों अप्रिशिएट हुए थे ये मैं इस वक्त जानता जरूर हूँ, पर अभी आपको बताऊंगा नहीं, ओवरडोज हो जाएगा, अगली क्लास में बताऊंगा। टॉप लूजर्स कौन थे कल के मार्केट में? तो भारती इंफ्राटेल, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा। एक्टिव बाय वॉल्यूम मतलब किसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, कितने सबसे ज़्यादा पैसे किसमें लगे थे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें था इन्वेस्टर्स का, तो उसमें नाम है बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। फिर लिखा है एक्टिव बाय वॉल्यूम, मतलब क्वांटिटी वाइज, वो था वैल्यू वाइज। अब क्वांटिटी वाइज किस में ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, तो वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि इसका सिर्फ 10 रुपये का शेयर, तो लोग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। बीएचईएल, उसका भी सिर्फ 36 रुपीज़ का शेयर, ये 2 महीने पहले कुछ 23 रुपीज़ का शेयर था, 36 हो गया, बहुत बड़ा है ये। अशोक लीलैंड, अक्सर ऐसा होता है जो शेयर की पर शेयर वैल्यू बहुत कम होती है ना, तो उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। आईटीसी, ये सब 52 वीक हाई, इसका मतलब इसमें वो कंपनीज के नाम आएंगे जो लोग इस साल के, जो कंपनियां इस साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड ट्रेड कर रही, मतलब ये सब कंपनियां अपने बेस्ट प्राइजेस पे ट्रेड कर रही एक साल के। तो बालाजी अमाइंस, श्री दिग्विजय सीमेंट, उत्तम उत्तम वैल्यू, और एक्चुअली उत्तम गलवा कंपनी थी पहले, अब नाम बदला है। फिर ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया, ये सब कंपनियां बहुत स्मॉल कैप है, इसका आप नाम नहीं जानते ज़्यादा। और जो 52 वीक लो, मतलब जो अपने साल भर के सबसे न्यूनतम स्तर, मिनिमम वैल्यू में ट्रेड कर रही है, ये हुजीज कंसल्टिंग, वेरी स्मॉल कैप वैल्यू, वी डोंट नो अबाउट मच अबाउट दिस। तो और भी ऐसे विंडोज अगली क्लास में बताऊँ। तो ये एक बेसिक वीडियो मैंने बनाया है, कुछ 20-25 मिनट्स का। अपना फीडबैक बताइएगा, और आगे भी कंटिन्यू करेंगे आपके लिए। ये गुड बाय।